Hello children, welcome to my channel. Today I am with a numerical related with the force for class 11th as per the NCERT syllabus. Okay. Question is, two girls each of weight 400 newtons climbing up to the height of 8 meters. दो लड़कियां 8 मीटर की ऊंचाई पर क्लाइंब कर रही जिनका वेट 400 न्यूटन है. ये आपकी हाइट, दिस इज हाइट h is equal to 8 meters and they are climbing. Suppose this is the first girl and this is the second girl. Both are of weight 4000 newton. This is weight. Okay. If first girl takes 20 seconds and second girls take 50 seconds to climb the height, उस given height को करने के लिए up to the top पहुंचने के लिए the time taken by first girl T1 is equal to 20 seconds while T2 is equal to 50 seconds. This is given to us and T2 is equal to 50 seconds. Find the power of the both the girls. दोनों की पावर निकालिए. Power, what does the power mean? पहले ये पता होना चाहिए. Power means, what is your power? It means what is the rate of doing work. Work किया, एक आदमी ने इतना काम किया इतने घंटे में और एक आदमी ने उसे आधे घंटे में काम कर लिया. तो नेचुरल पावर किसकी ज्यादा होगी? वही वर्क आधे घंटे में करने वाले की पावर ज्यादा होगी बजाय वही वर्क एक घंटे में कराए. इट मीन्स वेट पर आवर या पर सेकंड वो जो होता है वो दैट इज नोन एज पावर. तो पावर मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क पर सेकंड, जूल पर सेकंड. Dimensions of power is joule per second. Okay. It means in order to find power first girl, power of the second girl, first of all work done and time taken by them to climb that distance 8 meter is to be found. Okay. Now work done. Work done कितना है? This up एक weight is 400 newton. What is the difference between weight and mass? ये आप पता लगाइए. ये जरूर पता होना चाहिए. वेट इज सिंपली द मैटर, अमाउंट ऑफ द मैटर जो उसके अंदर बॉडी के अंदर कॉन्साइड होता है. इट इज मास एंड mg दैट इज वेट. In previous video I have defined this very well. Here this is in terms of Newton, that dimension of mass weight is Newton, while this is kg. This is the difference. जब आप किसी बॉडी को ऊपर उठाते हो, m मास का बॉडी है, उसका वेट mg होता है. जिस ग्रेविटेशन से अर्थ उसको बॉडी को नीचे खींचती है, दैट ड्यू टू दैट ग्रेविटेशन द वेट जो हमें महसूस होता है उस मैटर का, मास का, वो होता है इसका वेट. देन m इज मास इज मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशन और g that is known as Newton, that is measured in, weight is always measured in Newton. That is, this is weight. It means if we want to find out the energy, then in place of, because this is a potential energy, एक लड़की यहाँ पे ग्राउंड पे है, जब ऊपर जाएगी उसकी हाइट कितनी जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, mgh. अगर सपोजिंग ग्राउंड पे जीरो है, सपोजिंग ग्राउंड पे जीरो है, इट मीन्स उसकी हाइट पर mgh पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. वो काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगी और वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगी. ठीक है ना? उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन बाय फर्स्ट गर्ल इज इक्वल टू mgh. ओके, वर्क डन. दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. वर्क डन इज ऑल्सो
force into distance. Force is equal to weight. Force is nothing but the weight on the body applied with the G. D is the distance 8. Same in both the cases, दोनों तरीके से in terms of potential energy और in terms of force into distance the work will be same. कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी में डेवलपमेंट हुआ और या आपने जितना फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके गए, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना फोर्स लगाया, एम मैटर वाली बॉडी को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट एच हाइट तक लेके गई बॉडी, अपने वेट को लेके गई ऊपर। तो दोनों केस में आपका वर्क सेम होगा। आइदर ऑफ द फॉर्मूला यू कैन यूज, कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं। द वर्क डन इज इक्वल टू mgh, यानी mg इज इक्वल टू व्हाट, 400। this is given to us 400 Newton. This is 400 Newton of each girl. This is mg. This 400 Newton is m into g. Okay, this is to be noted. This is not simply m. m अगर रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। m is 400 and mg का मल्टीप्लिकेशन 400 आया, ठीक है। ओके, नाउ इट मीन्स वर्क डन हो गया 400 mg into h8. This is work done. Work done by both the girls is same because they are having the same weight. Work done and distance traveled by both them is 8 meter. दोनों ने 8 मीटर चला, दोनों का वेट 400 न्यूटन है, तो दोनों के द्वारा जो वर्क किया गया ऊपर जाने के लिए वो भी इतना ही होगा, सब बराबर होगा। लेकिन पावर इज नोन एज द रेट ऑफ वर्क डन। इसमें वर्क अपॉन टाइम, this time. So work is given to us upon distance. P1 will be equal to, for this is she is taking 20 seconds. P1 is equal to 20 seconds होगा और P2 is equal to 400 into 8 upon 50 seconds. बस this is the difference. This will be equal to 20 2s are 40, 160 joule per second. Okay, P2, this will be equal to 5 10s are 50, 5 8s are 40, 0, then 0 this will get only 64 joule per second. This is the power of both the individual girl. Okay, फर्स्ट का 160 जूल पर सेकेंड पावर है और इसकी 64 जूल पर सेकेंड। इसको ज्यादा समय लगता है, पावर नेचुरल कम होगी, इसको कम समय लगता है, उतनी हाई पे नेचुरल उसकी पावर ज्यादा होगी। कॉमन सेंस है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप एंजॉय विद माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। ओके, और वीडियो आएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी। न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाइए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 marks. ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक।